Good morning, class 10th students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the fifth chapter of your supplementary reader, Footprints Without Feet. The chapter itself name is Footprints Without Feet, written by one of the well-known writer H.G. Wells. Now, can you imagine that we can have footprints without feet? It is next to impossible. If someone is walking on a muddy surface or in sand or at some wet surface, then definitely footprints will be visible. Okay. Now let us start. Can a man become invisible? You might have seen that famous movie of Anil Kapoor, Mr. India, in which he invented one bracelet, and after putting that bracelet, a person was able to get himself invisible. So here in the introductory paragraph it is written, can a man become invisible? Question mark. Means, is it possible for a human being to become invisible? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. In this chapter, there is one story related to a scientist who invented some kind of medicine to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? Whether the scientist used his discovery in a useful manner or whether he misuses it, we have to go through the chapter and find it out. तो यहाँ सबसे पहले ये बताया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर में कि बिना पैरों के पंजों के निशान, राइट। तो क्या एक आदमी अदृश्य हो सकता है? ये कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने खोजा एक ऐसा इलाज जिसके द्वारा एक ऐसी मेडिसिन जिसके द्वारा उसका उपयोग कर अदृश्य होया जा सकता है। तो क्या इसने इसका सदुपयोग किया अपने इस आविष्कार का या इसका दुरुपयोग किया? Now read and find out. How did the invisible man first become visible? Why was he wandering the streets? Okay, let us read this chapter, find out the answer of these two questions. The two boys started in surprise, okay, at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. Started here means jumped with surprise. Started here means jumped with surprise. Imprints, marks made by the pressure of walking by a particular person, or marks made due to pressure. Imprints. Okay. Bare feet, feet without shoes or slippers. Okay. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? Now what happened? Two boys just jumped out with surprise when they happened to see fresh marks on a muddy surface. Okay. So those were the imprints of a pair of bare feet. ऐसे यहाँ पर दो लड़के जो है वो
आश्चर्यजनक तरीके से उछल जाते हैं जब वो देखते हैं ताज़ा पैरों के निशान जो है, जिन्होंने कोई स्लीपर या शूज़ नहीं पहने हुए थे, यानी कि नंगे पैरों के निशान जो है ताज़ा एक मिट्टी वाली सतह के ऊपर देखकर वो दोनों लड़के उछल जाते हैं आश्चर्यजनक तरीके से। What was a barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? Now one question came to the minds of these two boys, that what was a man who is not putting on any shoes or slipper, or who is barefooted, doing on the steps of a house just in the middle of London. उन पैरों के चिन्हों को देखकर वो सोचते हैं दोनों बालक कि एक नंगे पैरों वाला व्यक्ति किसी घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था जो कि लंदन के मध्य में स्थित था। एंड वेयर वॉज द मैन? नाउ nobody was visible there. Another question that came in the mind of the boys was, where was the man? वो व्यक्ति कहाँ था? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. जब उन लड़कों ने घूर कर देखा, gaze means stared, तो एक अद्भुत दृश्य उनकी आँखों को देखने को मिला। ताज़ा पैरों के निशान उसको बनते हुए दिखाई दिए और वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये निशान कहाँ से बन रहे हैं, बिकॉज नो बडी वॉज विजिबल देयर। ओके, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर। इसके बाद जो है वो पैरों के निशान एक के बाद दूसरे उभरते हुए नजर आए। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, उस सीढ़ियों पर नीचे उतरते हुए और उसके बाद नीचे गली में आगे बढ़ते हुए वो पैरों के चिन्ह नजर आए। डिसेंडिंग मीन्स टू कम डाउन एंड प्रोग्रेसिंग मीन्स मूविंग अहेड, आगे बढ़ना। The boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. जब उन लड़कों ने उन पद चिन्हों का अनुसरण किया, follow means to go after it. Okay, fascinated means attracted. ठीक है, तो जब उन लड़कों ने उन पद चिन्हों का अनुसरण किया, उनके प्रति आकर्षित होते हुए, तो तब तक उन्होंने उन पद चिन्हों का पीछा करना जारी रखा, तब तक कि वो पद चिन्ह जो मिट्टी वाली सतह के ऊपर जो है धुंधले और अधिक धुंधले नहीं होते गए, तब तक वो उन पद चिन्हों का पीछा करते रहे। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में उन लड़कों ने महसूस किया कि पूर्ण रूप से वो पैरों के जो निशान थे वो गायब हो गए, अदृश्य हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। इस रहस्य का स्पष्टीकरण वास्तव में बिल्कुल पर्याप्त रूप से सामान्य था। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered means puzzled, परेशान। तो वो परेशान बच्चे जो थे, जिनके मन में ये उलझन की स्थिति थी कि वो जान पाएँ कि पैरों के निशान किसके हैं। In reality, both the boys had been following a scientist. ये एक वैज्ञानिक का अनुसरण कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। Who had just discovered how to make the human body transparent.
उस वैज्ञानिक के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐसी तकनीक खोजी गई थी जिससे कि मानवीय शरीर को पारदर्शी बना सकते हैं, यानी कि देखने वाले को वो इंसान का शरीर नज़र नहीं आएगा। ऐसा उस वैज्ञानिक ने चमत्कारिक आविष्कार किया। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Griffin नामक वैज्ञानिक एक के बाद एक प्रयोग करता जा रहा था ये साबित करने के लिए कि मानवीय शरीर को अदृश्य बनाया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Swallowed का मतलब निगलना, engulf। ओके, तो अंत में ग्रिफिन के द्वारा कुछ बहुत मुश्किल से पाई जाने वाली दवाइयाँ या औषधियाँ निगली गईं और उन दवाइयों के परिणाम स्वरूप उसका जो शरीर था वो इतना पारदर्शी बन गया जिस प्रकार से एक ग्लास की शीट। दो इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि उसका शरीर इतना ही ठोस बना रहा जितना कि कांच। ओके, बट हिज बॉडी बिकम इनविजिबल। Brilliant scientist though he was, okay, Griffin was rather a lawless person. एक प्रतिभा संपन्न वैज्ञानिक यद्यपि ग्रिफिन था, लेकिन ग्रिफिन एक ऐसा व्यक्ति था जो कानून को तोड़ने वाला था। लॉलेस पर्सन, a person who does not obeys the laws of the country. Okay. His landlord disliked him and tried to eject him. Eject here means remove, हटा देना। उसका जो मकान मालिक था वो ग्रिफिन को नापसंद करता था और उसने प्रयास किया उसको उसके मकान से हटाने का, यानी कि उससे मकान खाली करवाने का। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। रिवेंज यानी बदला। तो बदला अपने मकान मालिक से लेने के लिए उसने जो है घर के अंदर आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब कि वो उस मकान से बिना किसी के देखे बाहर निकल जाए, उसके लिए ग्रिफिन को सबसे पहले अपने कपड़े हटाने होते थे। Thus it was that he became a homeless wanderer. तो इस प्रकार से फिर मकान में आग लगाने के बाद अपने कपड़े हटाने के बाद वो एक बेघर इधर उधर भटकने वाला व्यक्ति बन गया। Wander means one who moves here and there aimlessly, उद्देश्यहीन तरीके से इधर उधर भटकना, wander. Homeless means बेघरबार। Okay, without clothes, without money and quite invisible. अब इस समय वो बिना कपड़ों के था क्योंकि शरीर को पारदर्शी बनाने के लिए उस औषधि का सेवन करने के बाद अपने कपड़े हटाने होते हैं, तो उसने कपड़े वो हटा चुका था। बिना पैसे के वो था, पैसे उसके पास नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल वो अदृश्य हो गया था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक। जब तक कि वो किसी मिट्टी वाली सतह से उसका गुजरना नहीं होता था, ठीक है, तब तक वो अदृश्य रहता था। और जैसे ही मिट्टी वाली सतह पर वो गुजरता था तो उसके पैरों के निशान वहाँ लोगों को नज़र आ रहे थे, और यही निशान
उन दोनों लड़कों के द्वारा भी देखे गए। ही एस्केप्ड easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो वहाँ से छुटकारा पाकर पर्याप्त रूप से आसान तरीके से जो है वो उन दोनों लड़कों से भी छुटकारा पाना चाहता था, राइट, जो कि उसके पैरों के निशान का अनुसरण करते हुए उसका पीछा कर रहे थे लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। बाय नो मीन्स मीन्स नॉट एट ऑल और सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। लेकिन ग्रिफिन का ये साहसिक कारनामे जो है वो निश्चित रूप से अभी समाप्त नहीं हुए थे, पूरे नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसके द्वारा एक ख़राब समय, साल का एक ख़राब समय यानी कि सर्दी का मौसम चुना गया था इधर उधर भटकने के लिए लंदन की गलियों में या लंदन की सड़कों पर, वो भी बिना किसी कपड़े के। इट वॉज मिड विंटर, ये सर्दी के मध्य का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। हवा जो है शरीर को काटने वाली कड़ाके की ठंड वाली हवा चल रही थी, राइट, और वो बिना कपड़ों के अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स he decided to slip into a big London store for warmth. तो इसके बजाय कि वो लंदन की गलियों में इधर उधर भटकता रहे, वो उसने सोचा कि वो प्रवेश कर लेगा एक बड़े से लंदन के डिपार्टमेंटल स्टोर में, जिससे कि वो अपने शरीर को थोड़ी गर्मी प्रदान कर सकें। सो इन ऑर्डर टू गेट वार्मथ he decided to enter in a big London store. Okay, for that purpose, instead of walking about the street, he decided to get inside that departmental store. Closing time arrived. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब वो जो लंदन का डिपार्टमेंटल स्टोर था उसके बंद होने का समय हो चुका था। जैसे ही उस डिपार्टमेंटल स्टोर के दरवाजे बंद हुए तो ग्रिफिन जो है उस डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर प्रवेश कर चुका था। क्योंकि वो इनविजिबल था इसलिए वो किसी को नज़र नहीं आया। तो उस डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रवेश करने के बाद यहाँ वो जो क्लोथ सेक्शन था उसमें जाकर उसने सबसे पहले कपड़े पहने, सम वूलन क्लोथ्स आल्सो, एंड ही डिसाइडेड टू फीड हिमसेल्फ एंड देयर वाज नो एनी नीड ऑफ एक्सपेंडिंग ए सिंगल पेनी। ओके, क्योंकि वहाँ डिपार्टमेंट स्टोर में कोई था नहीं, जो कपड़ों वाला सेक्शन था वहाँ जाके उसने कपड़े पहनने का आनंद लिया और उसके बाद रेस्टोरेंट वाले सेक्शन में जाकर उसने बिना कोई भुगतान किए आराम से भरपेट भोजन किया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। उसने डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर रखे हुए जो पुट्ठे के डब्बे थे जिनके अंदर वूलन क्लोथ्स वगैरह थे उनके रैपर्स को हटाया, राइट, और उसने जो है गर्म कपड़े पहनना प्रारंभ किया। सून विद शूज़ एन ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। तो शीघ्र ही पैरों में जूते पहनकर
एक ओवरकोट पहनकर और एक चौड़ा गोल गले वाला हैट उसने पहन लिया, वाइड यानी चौड़ा, ब्रिम का मतलब हैविंग ए राउंड सर्कुलर सरफेस, तो उसने एक चौड़ा गोल हैट पहना और इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से वस्त्र पहने हुए एक जेंटलमैन की तरह बन गया। एंड आफ्टर पुटिंग ऑन ड्रेस ही बिकेम विजिबल, तो कपड़े पहनने के बाद ग्रिफिन अब लोगों को नज़र आने योग्य हो गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट he found cold meat and coffee and followed up the meal with sweets and wine taken up from the grocery store. तो उस लंदन स्टोर की जो किचन थी रेस्टोरेंट की, तो वहाँ पर उसको जो है फ्रीज के अंदर रखा हुआ मीट मिला और साथ में कॉफ़ी भी। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और उसने भोजन करने के बाद मिठाइयों का आनंद लेना प्रारंभ किया। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और जो ग्रोसरी स्टोर था जहाँ पर किराने का सामान या अन्य खाद्य पदार्थ मिलते थे, वहाँ से उसने वाइन भी ले ली। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए pile of quilts. Quilt means जिसे हम कहें रजाई, तो पाइल यानी ढेर, heap lying on the top of each other, पाइल यानी कि ढेर। तो अंत में वो एक रजाइयों के ढेर के ऊपर जाकर लेट गया और सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि ग्रिफिन जो है समय पर जाग जाता तो सब कुछ उसके लिए ठीक ठाक रहता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. जैसा कि ऐसा नहीं हो पाया, वो तब तक नहीं जागा तब तक कि उस लंदन स्टोर में काम करने वाले जो सहायक कर्मचारी थे वो आना प्रारंभ नहीं हो गए, यानी कर्मचारी आने लग गए और ग्रिफिन अभी तक सोया पड़ा था। When he saw a couple of them, approaching, he panicked and began to run. जब उसने कुछ कर्मचारियों को उस स्टोर में आते हुए देखा ग्रिफिन ने, ठीक है, तो वो थोड़ा सा एकदम चौंक कर उठा और उठकर पैनिक मीन्स टू गेट फ्राइटन और टू गेट अलार्म्ड, एंड ही स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम देयर। दे नेचुरली गिव चेज इन द एंड, अंत में उसने जो है जो कर्मचारी वहाँ पे जो थे उन्होंने उस ग्रिफिन का पीछा करना शुरू किया। राइट, चेज मीन्स टू फॉलो समवन। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अंत में ग्रिफिन जो है उनसे छुटकारा प्राप्त कर पाया जब शीघ्रतापूर्वक उसने अपने उन नए वस्त्रों को उतारना प्रारंभ कर दिया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। तो एक बार फिर ग्रिफिन ने अपने आप को कपड़े उतारने के बाद अदृश्य बना लिया, लेकिन वो बिना वस्त्रों के निवस्त्र था, वो भी जनवरी की कड़ाके की ठंड में। राइट, चिल मीन्स एक्सट्रीम कोल्ड, तो ठंडी बदन को चुभने वाली कड़ाके की ठंड वाली हवाएं चल रही थी और उस समय ग्रिफिन के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। एंड ही हैड ऑलरेडी यूज्ड
that rare drug which compels a person to become invisible. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार ग्रिफिन ने निश्चय किया कि वो एक नाटक कंपनी के जो है स्टोर रूम में प्रवेश करेगा इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, इस आशा में कि वहाँ पहुँचने के बाद न केवल उसे वहाँ पर कपड़े मिलेंगे बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, बल्कि उसको कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी कि वो अपने कंधों के ऊपर वाले भाग को भी जो है वो छुपा पाएगा। ठीक है। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन, ठंड से कांपते हुए ग्रिफिन शीघ्रतापूर्वक ड्यूरी लेन नामक इलाके में पहुंचा। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि केंद्र था उस रंगमंच नाटक कंपनियों का, राइट, इट वाज द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, ड्यूरी लेन। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, शीघ्र ही उसको अपने लायक एक उपयुक्त दुकान मिल गई। सुटेबल यानी उपयुक्त। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट a little later wearing bandages round his forehead। तो उस दुकान में उसने प्रवेश किया, अदृश्य वो बन गया। ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया और उसके बाद जब बाहर आया तो थोड़ी देर बाद जब बाहर आया तो उसने अपने चेहरे पर और माथे पर जो है पट्टियाँ लगाई हुई थी। डार्क ग्लासेस यानी कि डार्क जो गॉगल्स होते हैं धूप से बचाव के लिए, वो उसने पहने हुए थे। फॉल्स नोज, क्योंकि रंगमंच के स्टोर में, नाटक कंपनी के स्टोर में वो गया था, तो एक कृत्रिम नाक भी उसने लगा ली थी। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और उसने जो है बड़ी सी जो है भौएँ भी लगा ली थी। विस्कर्स यानी भौएँ। एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ा सा हेड भी उसने पहन लिया था। टू escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind। Callously means without caring, बिना परवाह किए, यानी कि बिना किसी के देखे वहाँ से छुटकारा प्राप्त कर वो निकल पाए, तो उसने बिना सोचे समझे दुकानदार के ऊपर आक्रमण किया। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे की तरफ से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और इसके बाद उसने उस दुकानदार को लूट लिया वो सारे पैसे जो कि वो उससे पा सकता था, प्राप्त कर सकता था। सर टाइम देख लो, ज़्यादा देर में। ओके, स्टॉप कर दो, सेकंड लेक्चर लेंगे।